Requesting everyone to please take your seats.
Requesting everyone to please take your seats. Okay, okay, sir. नहीं बैठे नीचे बैठे हाँ यहाँ बैठे यहाँ So now I request Shri Siddharth Jain, Additional Secretary, Ministry of Cooperation, Government of India, to please start the session 3, World's Largest Grain Storage Plan in Cooperative Sector. Sir, please take over. तो नाबार्ड से भी मैं आमंत्रित करूंगा और रिक्वेस्ट करूंगा प्रेजेंटेशन शुरू करें। हम लोग काफी लेट हो गए हैं, आधा घंटा लेट हो गए हैं, तो इसीलिए लंच का ब्रेक कितना है से लेकर के हाँ तो हाँ थोड़ा सा करना, लंच ब्रेक में से 20 मिनट निकालना पड़ेंगे। चलिए। Good afternoon, everyone. Respected dignitaries on the dais, off the dais, and my colleagues. माय रिक्वेस्ट इज वो पीछे के येलो लाइट भी बुझा दीजिए, काफी गर्म हो रहा है कमरा। हाँ मैडम। Yes. So I'm Chinchu Khan, General Manager, NABARD. I'll be presenting on world's largest grain storage program for the 6 states of Bihar, Chhattisgarh, Jharkhand, Madhya Pradesh, एफसीआई बिहार के जीएम साहब आए ना, आइए। West Bengal. नाफेड से कौन है, आइए। एनसीसीएफ कोई है, आ जाइए। और वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन आ जाइए। आइए। So I welcome our representatives from FCI, NAFED, NCCF, who are integral and warehousing corporation, who are NAFED से कोई नहीं है, आइए आइए आइए। कुर्सी और लगवा देना भाई अगर कम पड़ रही हो तो। So I welcome, these are the important components of world largest grain storage plan. हाँ, okay. एक कुर्सी और यहाँ कोई देगा? हाँ। लिखना होगा, बैठ कर जाइए, बैठ कर जाइए। WDRA शायद ऑनलाइन जुड़े होंगे ठाकुर जी। हाँ ठीक है, चलिए मैडम। Yes, so we are online. Good afternoon, everyone, once again. These are the packs identified and the lakh metric ton that the capacity that needs to be created, and against that, as per the RCS that they have submitted for in the PPTs that they have submitted, we find that Bihar, Jharkhand, Odisha, Chhattisgarh, West Bengal, and Madhya Pradesh do not have targets. But as against the target that has been allocated by MOC, the targets that the packs that have been identified by Bihar, Jharkhand, Odisha and Chhattisgarh is much less than the required. Yeah, so we hope to hear from the RCS of these 3 states the reason for the delay, because if we look at it, Bihar, Odisha and Chhattisgarh, almost these were the identified packs before 31st March 2026. For identifying the packs, Jharkhand was given a target of 30th April. As per the PPT that they have presented, 72 is the target and they have identified 72 packs, but they have found only 54 packs eligible for this under this program.
So what we need to see is why they have found the rest 18 ineligible. As per the meeting that was held on 9th April at Banaras, it was decided that before going to DCDC, all the identified packs, their viability, both as regard to the location as well as the financial viability of these packs will be looked into before getting approved from DCDC. क्योंकि बहुत जगह पे ये देखा गया है कि DCDC अप्रूवल के बाद financial viability, location की visibility, all these issues are being cropped up after DCDC has been given the approval. So these things we need to look into before DCDC approval. Bihar, Chhattisgarh and Odisha, wherever the projects was sanctioned and loan disbursed, they needed to start grounding the projects by 30th April. But by the end of May, we find that none of these projects where loan was sanctioned and disbursed, the grounding has started. Here, I would like to indicate that as per the AMI guidelines, once the first loan disbursement takes place, the projects have to be completed within 18 months. So the more the delay happens with regard to start of the program, completion will get delayed. And as a result, the packs may lose out on the subsidy. So that needs to be taken care while deciding the timelines for the projects. So like if we see the hiring agencies, they have all given their preference or wherever there is a gap in the districts. So those districts, wherever the FCI or NCCF, NAFED, they have given their requirements, those districts needs to be identified, packs identified at the earliest, and then we need to go ahead, like in the Varanasi program, we have been told to conduct district level workshops. So those combined districts, wherever there are combined districts to start with, we can go ahead with those district level. Yes. So our regional offices, the RCS office and the hiring agencies, all three will need to work together so that we identify these districts and go ahead with the training programs. Because once we conduct the awareness program, we expect that the timelines will improve in implementation. So we find that DPRs is one of the areas where most of the projects are getting stuck because the DPRs are not being finalized. So either in many of the states, the DPRs are being identified, the RCS office is identifying a particular agency for completing the DPRs for all the packs. So either those agencies that have been hired, they can complete the DPR process, or there is one more option. You can talk to NAPCONS, a subsidiary of NABARD, for completing these DPRs. The packs, the DCCBs can take credit guarantee against the loans that they are sanctioning. But for that, in the PPTs, we find that many of them have written that they will be dovetailing it with the AMI scheme where subsidy is available. They can dovetail it with the AIF also. AIF has already been extended till 30th September. So the loans need to be sanctioned before 30th September so that this credit guarantee can be given. And under AIF, if the loan is sanctioned, the guarantee fee that the agency has to pay, that guarantee fee can be reimbursed if it is sanctioned under E. So we would suggest that you take full benefit of all the available benefits that can be dovetailed with the program. For workflow process under AMI, once the first disbursement takes place, the banks, that is the DCCB or the STCB, whoever has sanctioned the मैडम loan. ये सभी राज्यों को ना आप एक्सप्लेन भी कर दीजिए, इसमें आपको डाउट हो
नव संरक्षण में कैसे होना, आपका बैंक है नहीं है वो देख लीजिए। जहां जहां बनना है गोदाम, उस जिले का डीसीसीबी इसमें कवर है नहीं है, वो आप नाबार्ड के साथ तुरंत बात करके सॉर्ट आउट कर लीजिए। क्योंकि यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैं कह देना चाह रहा हूँ, नव संरक्षण में आ जाएगा, फिर कोई तरह की कोलेटरल प्लेजिंग सिक्योरिटी जरूरत नहीं है। दैट इज कमिंग एज ए हिंड्रेंस इन मेनी प्लेसेस। आप गोदाम्स को डीसीसीबी जो है कह रही है कि वो लैंड इसको करो, मॉर्टगेज करो, ये करो वो करो, उसकी आवश्यकता ही नहीं है। आपको नव संरक्षण में मेंबरशिप लेना है, जहां जहां आप नहीं हैं वो डीसीसीबी को आप दिला के क्लोज करा दीजिए। तो नाबार्ड से भी रिक्वेस्ट रहेगी मैम। एंड उसके साथ यू हैव टू आल्सो गिव डायरेक्शन कि देयर इज नो नीड फॉर एनी सेपरेट कोलेटरल Collateral, yes. because it is becoming hindrance for loan sanctioning. So next, sir, as Siddharth sir has said, I would request the ROs, regional officers present over here to bring in all the districts that have, to start with at least all the districts that have been identified हाँ, under the hiring program. assurance NAFED ने दे दिया है, वो लिस्ट सेंट्रलाइज लिस्ट है। सारंगी जी आप फिर भी मैडम को भेज दीजिए, आप आरओज को एडवाइस कर दीजिए विद इन 1 month's टाइम इफ एनी डीसीसीबी इज नॉट देयर they should come on board. In case they are not fitting the norms, then please bring it for decision to what is to be done there. Okay, definitely. We'll keep 1 month's time, please. Sir, under AMI, you will find that subsidy is available for go down also. And while working out the total cost of the project, up to 25% of the cost can be your ancillary activities. We find that in Odisha, Bihar, while Chhattisgarh has sanctioned ancillary, taken into account the ancillary infrastructure, that is like a guard room, these restrooms, roads, all these are ancillary activities, and these are essential to make the go down viable. Otherwise, if there is no road for the truck to come in carrying the grains or whatever, movement of the vehicle should be there. So these activities should definitely be built in while constructing the godowns. So while Bihar and Odisha, they have constructed almost 1,500 metric ton godowns. Each godown average size is 1,500 metric ton. They have not taken into account the ancillary infrastructure available. And now with the efforts of MOC, 33.33%, up to 33.33% of the total project cost can be covered for ancillary infrastructure. So please make use of this. And like I have already said, the progress of the timelines is very essential here. So we have created a tracking module for the WLGSP program. So we have given the ROs have the admin ID to create the user IDs for all the RCS offices, who in turn will be submitting the data progress so that at the highest level from MOC, NABARD, head office, regional office, everybody can track the progress that is taking place in the districts. So in case any of the RCS offices find that they do not have the user ID for submitting the information in the tracking module, See, please contact in the our coming regional meeting office. on 28th, 29th, we will take the status from this portal. अगर आपका दिखेगा तो दिखेगा, नहीं दिखेगा तो नहीं दिखेगा. And henceforth all data will be taken for review. What comes here? तो आपके लॉगिन नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, आप नाबार्ड आरओ से सीजीएम साहब से बात करिए और इसको फाइनलाइज करिए और इसमें डेटा अपडेट करिए प्लीज. आगे चलिए मैडम. Here we would like to highlight two success stories. In the phase 1 of the WLGSP, there were 11 projects, and we find that two of the projects, they are doing extremely well. One is in Rajasthan, where along with a godown, they have set up a seed processing unit, and they are earning they have diversified their
business portfolio, and in the process, they are able to, of the 11 identified packs in the first phase, there are 5 projects which are doing well, and these 2 are doing extremely well, where they are able to uh, repay their loan from these various activities that they have undertaken. And they're also providing employment. So I think we can take, we can see these 2 projects and take as an example for going forward. So this is the second PAX that is in Maharashtra, where they have set up a 3,000 empty godown, and they are doing extremely well, where they have employed 40 people and repaying their loan successfully. So that is all from my side. If there are any questions. Thank you. Next presentation, please. FCI. Respected Additional Secretary, sir, all the senior officers present on the dais, all the officers present here and connected with us through VC. A very good afternoon to all. Under the scheme World Largest Grain Storage Plan, FCI has been assigned a very important role from the start point of selection of site, then issuance of assurances, hiring assurances, and operationalization of the godown. So when the scheme was formulated, some initial SOP was formulated and issued. As the time progressed, a need was felt to recalibrate the SOPs with the objective of the scheme to make it more pragmatic, more conducive, and more result oriented. So I would like to present some gist of the new SOP. So as we are talking about the construction of godown to store the food grains, the first important aspect is the flood and water logging condition. Under the new SOP, site should be ideally free from all these things. But new SOP also has introduced a practical mitigation based approach, which suggests that if this risk can be mitigated through drainage or other system, then the site should not be outrightly rejected. The next important aspect for the construction of godown was ST line presence. So in many sites, we found that there was a ST line, high tension line going over the land, and it was outrightly rejected. So FCI came up with a change that if that is there is a possibility to relocate it, then again the conditional approval should be given. That site should not be rejected. Now, as we again talking about the food grains storage, that site should be away from pollution area and industrial hazard. Then, as per instruction of Government of India, our godown has to be WDRA compliant. Then road connectivity, the godown site which we are selecting, the truck should ply throughout all the weather condition. Then nature of evaluation, we introduced it that it should be transparent, objective, and in a time bound manner to achieve a positive result for this scheme. Now, the whole SOP focuses on the philosophy that our endeavor should be very positive in selecting the site. Now, so these are the summary of the changes. As I already explained, that there was a shift from technical feasibility based approach, then risk mitigation instead of outright rejection, then practical engineering solution. If there is some solution through which site can be made applicable for construction of godown, it should not be rejected. So these are the important relaxation which was introduced with the aim to facilitate the site selection process. Now, as we are in Chhattisgarh, I would like to inform the status of my state.
In Chhattisgarh, 27 PAX locations have been identified and hiring assurances of all the 27 locations have been issued. Now, in case of Odisha, 27 hiring assurances letter have already been issued. Madhya Pradesh, that was not there so far as the phase 1 is concerned. Jharkhand, 49 PAX go down have already been approved through DCDC, but there are some issues and very shortly that issue will be sorted out and hiring assurances will also be issued. Now, with reference to the further proposal of phase 2, in phase 2, Bihar, there will be a proposed capacity of 84,000 MT. In Jharkhand, at 24 location, 2.28 LMT capacity would be coming up. In West Bengal, at 4 location, 41,000 MT capacity will be coming up. In Madhya Pradesh, at 2 location, Jabalpur and Satna, 13,000 MT capacity will be coming up. So these are the salient features of the site selection, and FCI is committed to ensure that every time that site selection process, giving hiring assurances and operationalization of these go down are carried out in a very smooth manner. Thank you. Thank you, FCI. Your support has been very critical. Next, please. Next presentation. आप बता दीजिए जो भी है। नेफेड, उसके बाद NCCF, स्टेट वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन से भी हैं आशीष जी, और उसके बाद स्टेट्स आप प्लीज समझ लीजिए सब, क्योंकि प्रोग्रेस दिख नहीं रही हमको ओडिशा में भी, छत्तीसगढ़ में भी, तो इसलिए थोड़ा देख लीजिए। हाँ, शुरू करिए। नमस्कार सर। वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज प्लान के अंतर्गत जो पैन इंडिया लेवल पर आपने कितने, ये 4, 5, 6 राज्यों के कितने दिए हैं लोकेशंस, इसमें कितने आ रहे हैं? इसमें 16 आ रहे हैं सर। वो बता दीजिए। 16 आइडेंटिफाइड हैं सर, और जिसमें कि डीसीडीसी से, इनका प्रेजेंटेशन स्लाइड आगे लाइए जल्दी। डीसीडीसी से 2 अप्रूव हैं। नेक्स्ट स्लाइड लाइए। वो दूसरा वाला प्रेजेंटेशन देना जो अभी हमने दिया था, वो ऑल ओवर इंडिया वाला नहीं दो, यहाँ जो लोकल वाला यहाँ का दो। हाँ सर, इसमें मेरा ये कहना था सर, प्रेजेंटेशन आ रहा है तब तक, इस योजना के अंतर्गत सर हम लोग जिसे दलहन तिलहन की खरीदी करते हैं, जिसमें कि हमको पैक्स को एश्योरेंस देना है, तो ईस्टर्न जोन में जिसका कि जहां जो 6 राज्यों का यहाँ पर रिव्यू हो रहा है, तो यहाँ खरीदी कम होती है। इस वजह से अभी तक जो है बहुत ज्यादा इसमें प्रोग्रेस नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर भी जो है इन 6 राज्यों में 16 पैक्स आइडेंटिफाई किए गए हैं सर, और डीसीडीसी से 2 अभी अप्रूव्ड हुए हैं। वैसे एज फार एज छत्तीसगढ़ इज कंसर्न सर, 1 मिनट, ये सारे जो हैं आप सब प्लीज नोट कर लें, ये डीसीडीसी में अप्रूव कराएं और आगे बढ़े, यहाँ कंस्ट्रक्शन शुरू कराएं, डीसीडीबी से लोनिंग दिलाएं। पैक्स हो तो पैक्स कर सकती है, दूसरी कोऑपरेटिव सोसाइटी भी कर सकती है सर। यहाँ पर प्रोग्रेस नहीं आ रही है। ये 6 राज्यों का एक ही जगह है जी सर। तो और इसमें सर जैसा कि यहाँ बंगाल, आप ये देख लीजिए दादा, हाँ एक बार इसको देखिए। वेस्ट बंगाल में 14 आइडेंटिफाइड हैं सर, और आपके यहाँ डीसीडीसी फॉर्मेशन हुआ, देख लेना, नहीं तो अभी फॉर्मेशन करके इसको आगे बढ़ाओ। सर पैक्स का सर, पैक्स एक भुवनेश्वर ओडिशा, ओडिशा से कौन है? ये एक देख लीजिए, ये कहाँ है, इसको डीसीडीसी में अप्रूव हो गया पर कंस्ट्रक्शन शुरू नहीं हुआ। ठीक, आप अपने प्रेजेंटेशन में बताइए। ठीक है, वो ओसम बोर्ड के थ्रू होगा उड़ीसा में सर, वहां पर कंस्ट्रक्शन। कंदरपुर पैक्स है, वहां पर कटक में है,
वो उसको आइडेंटिफाई किया गया है, ठीक है, आगे तो चलो, काइंडली उसको आगे चलो। अब सर जो दलहन तिलहन की खरीदी जो है इस बार से सर छत्तीसगढ़ स्टेट में चालू हुई है, तो इसमें लगभग लगभग 40,000 टन गोडाउन की जरूरत पड़ेगी, जिसका कि डिस्ट्रिक्ट वाइज हमने एक लमसम एक टेंटेटिव जो है कैपेसिटी का रिक्वायरमेंट होगा यहाँ पर, वो हमने जो नेफेड के लिए आइडेंटिफाइड डिस्ट्रिक्ट्स हैं सर, उसके लिए हमने यहाँ मेंशन किया है। आप एमओसी को भी इंडिकेट कर दीजिए, जी नाबार्ड को भी इंडिकेट कर दीजिए। नाबार्ड लोकल आरओ से रिक्वेस्ट रहेगा, इसको थोड़ा पुश करेंगे ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स में। यहाँ पर सर मेनली छत्तीसगढ़ से कौन है? छत्तीसगढ़ से अधिकारीगण, तो ये देख लीजिए कि आप इनसे बैठक करिए और इसको आगे ले जाइए। सर जहाँ जहाँ पर ज्यादातर दलहन और तिलहन की खरीदी हो रही है सर, उसको मेनली हमने क्वांटिटी मेंशन किया है। वैसे 500 टन का मिनिमम यहाँ पर रिक्वायरमेंट मिनिमम वो था, कैपेसिटी का था, तो हर एक डिस्ट्रिक्ट में कम से कम 500 टन का अगर वो बनेगा तो कम से कम सुविधा हो जाएगी वहाँ पर स्टोरेज करने के लिए। और इसके इसके अलावा सर इसमें जो अभी रिसेंटली जो बॉटलनेक्स आ रहे हैं सर, आपको कौन से सीजन के लिए चाहिए वो भी रबी indicate सीजन करिए। के लिए सर। तो वो साल और सीजन लिख देंगे ना, तो एक टाइमलाइन बन जाती है उनको कब चाहिए। सर और मेरा अनुरोध रहेगा छत्तीसगढ़ से, वो ऐसा ना कि वो आपके भरोसे बैठे रहे और आप ना करके दें और वो परेशानी में रहे और किसान परेशानी में आए। तो इसको ऐसे कमिटमेंट लीजिए, चैलेंज लीजिए, उनको जहां आवश्यकता है वहां आपूर्ति करना चाहिए। वैसे सर पैन इंडिया लेवल पर सर इंडिया नहीं बात करेंगे, जी जी सर। वी आर नॉट टॉक हाँ, बस और हम कुछ कहना है? बस इसमें बॉटलनेक्स अभी ये है सर कि हम लोग का जो रिसेंटली जैसे स्टेट स्कीम्स में जो बने हुए गोडाउन्स है, जी उसको उसमें खाद और बीज का जो है स्टोरेज किया जाता है पैक्स के माध्यम से, वो WDRA एक्रीडेटेड नहीं होता है, तो उसको हम लोग हायरिंग एश्योरेंस दे नहीं सकते हैं। तो न्यू कंस्ट्रक्टेड जो होंगे WDRA गाइडलाइंस में, उसको हम लोग हायरिंग एश्योरेंस वगैरह दे करके हम लोग आप उसमें स्टोरेज अभी करेंगे सर। WDRA के कौन से गाइडलाइन में नहीं आ रहे हैं वो आप निकाल लीजिए, जी सर। अभी बात कर लेते हैं, सर श्योर है सर, ना? थैंक अभी यू सर। बात कर लेते। और कोई इश्यू है आपकी नो तरफ? नो सर, नो। थैंक यू, थैंक यू थैंक्स अ सर। लॉट। ये जी NCCF। Good afternoon, respected Secretary Sir, additional Secretary Sir, Joint Secretary Sir, officers from Raipur RCS and all other distinguished officers and agencies present here. At the outset, I would like to highlight the initiatives begun and undertaken by NCCF with the states of Raipur and Bhubaneswar under the guidance and direction of the Ministry of Cooperation. In Raipur, Chhattisgarh, sir, we have recently Presentation identified. आगे बढ़ाइए, उनका स्लाइड नहीं बढ़ रहा है, आगे और आगे चलिए। Sir, in Raipur, Chhattisgarh, we have recently identified 4 additional packs. Earlier, the number stood at 76. And with these additional, the total has now increased to 80 packs. Sir, continuously we are trying to आप अपने प्रेजेंटेशन identify में बताइए, आपका जब आएगा ना प्रेजेंटेशन, इसका स्टेटस बताइए। चलिए आगे चलिए मैडम। सर, इसमें हम लोगों ने CWC और SWC के साथ भी टाई अप करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें आने वाले अभी NCCF को 20,000 मैट्रिक टन का PSS में प्रिक्योरमेंट हुआ है। पहले सर NCCF को ज्यादा प्रिक्योरमेंट नहीं था, तो जिस प्रोग्रेस तरह नहीं अभी कर पाए। नेफेड ने एडिशनल आइडेंटिफाई करके दिया ना 40,000, आप भी एडिशनल आइडेंटिफाई करके दे दीजिए जहां न्यू प्रोक्योरमेंट एरियाज आ रहे हैं। जी सर। सर, जो ये 4 आइडेंटिफाई किए, ये सर एक डिस्ट्रिक्ट है धमतरी, उसके अंदर हमने आइडेंटिफाई किया 4 पैक्स। ठीक है सर, इसके अलावा भुवनेश्वर में हम लोगों ने 2 पैक्स आइडेंटिफाई किए हैं, जिसका प्रपोजल हमने RCS ऑफिस भुवनेश्वर को सबमिट किया था, बट उधर से कोई रिप्लाई ओडिशा नहीं आपने आया है। रिस्पॉन्ड करना, ओडिशा अपने प्रेजेंटेशन में प्लीज इसको बताइए क्या हो रहा है। आगे चलिए मैडम। बाकी सर अदर स्टेट्स में हम लोग आगे चलिए, ये तो है इसमें, यहाँ नहीं है ना ये, आगे चलिए। अभी सर ये ठीक 6 है, स्टेट्स में से ठीक है, 2 ठीक है, स्टेट्स में हम ठीक लोग नेक्स्ट कमिंग ठीक है। ईयर कर लें। थैंक यू मैम। थैंक यू सर। यस, आप सर WDRA ऑनलाइन से जुड़े हैं ठाकुर साहब। जय हिंद सर, जय जैन सर, इन जय हिंद टू एवरीवन, सभी को मेरा प्रणाम। हेलो, एम आई ऑडिबल प्लीज? हाँ हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है। ओके।
may I have the WDRA presentation? सर जब तक प्रेजेंटेशन लगता है मैं आपको वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज प्लान में जो भी हम अभी कार्रवाई करने वाले हैं उसके बारे में स्पेसिफिकली कुछ बताना चाह रहा हूं। हमने एक सेपरेट स्ट्रीम एस्टैब्लिश की है जो केवल इसके लिए ही काम करेगी, लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज प्लान के लिए। जितने भी पैक्स इसमें लिस्टेड होते हैं उनका डॉक्यूमेंटेशन इंक्लूडिंग हैंड होल्डिंग, सभी को कौन सी चीज कैसे कैसे करनी है, वो सारी चीजें हम पर्सनली उसके लिए अलग से पोर्टल बना करके उसके लिए हम मॉनिटर करेंगे। पहली चीज। दूसरी चीज, जिन स्टेट्स में हम अभी जिन 6 स्टेट्स का आज हमारा कॉन्फ्रेंस हो रहा है, सभी स्टेट्स में एक्सेप्ट फॉर मध्य प्रदेश जिसमें 13 पैक्स हैं जो कि या कोऑपरेटिव्स हैं जो रजिस्टर्ड हैं, बाकी किसी भी स्टेट में कोई भी पैक्स WDRA रजिस्टर्ड नहीं है। अब जैसे हम मध्य प्रदेश लें, मध्य प्रदेश में टोटल जो हमारे पास सिविल गोडाउन हैं जो लिस्टेड हैं वो ऑलमोस्ट 3,300 के करीब हैं, लेकिन हमारे पास कोई भी पैक्स जो है रजिस्टर्ड नहीं है। मैं ऑडियंस को ये बताना चाहूंगा कि पैक्स के लिए WDRA ने स्पेशल प्रोविजन किए हैं और बहुत ही रिलैक्सेशन है हर नॉर्म्स में। केवल आपको 2 चीजों का 2 फीस देने हैं। रजिस्ट्रेशन फीस जो कि केवल 500 रुपए है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर में जो आपको रिलैक्सेशन दिए गए हैं वो भी हमारी साइट के ऊपर लिस्टेड हैं पूरे तरीके से। और उसके सिवाय एक जो मेजर बॉटलनेक जो हमारे 2 होते थे, एक नेटवर्थ का और साथ में जो SD/ इंडेमनिटी बॉन्ड जो हम देते थे, जो प्री रिक्विजिट है, हमने ऑलरेडी केस टेकअप किया है DFPD से और मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन की सहायता से मोस्ट प्रॉब्ली हम उसमें भी काफी हद तक रिलैक्सेशन कर देंगे, खासकर जो WLGSP के जितने भी पैक्स के वेयर हाउसेज हमारे पास आने वाले हैं। हमारा हर जोन के लिए एक नोडल ऑफिसर बनाए गए हैं जो कि आपको बता दिए जाएंगे। आप इंडिविजुअली और जो रजिस्ट्रार हैं वो उनके टच में आ सकते हैं और वो आपको पूरी तरीके से हैंड होल्ड करेंगे ताकि आप पूरे रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में आपको कोई दिक्कत नहीं आए कहीं पर भी। ओके, नाउ विल जस्ट टू अब प्रेजेंटेशन की बात करते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। अब देखिए, सबसे पहले जब भी आप अप्लाई करते हैं WDRA के पोर्टल के ऊपर रजिस्ट्रेशन के लिए, हम अगर आपके डॉक्यूमेंट सारे ठीक हैं और आपने रजिस्ट्रेशन फी जो पैक्स में 500 रुपए है वो दी हुई है, तो हमारी टीम फिजिकल इंस्पेक्शन के लिए आपके पास जाती है और विद इन 10 डेज वो अपना रिपोर्ट सबमिट कर देती है। जब वो रिपोर्ट सबमिट करती है तो हम आपसे इंश्योरेंस और सिक्योरिटी डिपॉजिट जो हमारा है फिलहाल के लिए जो है 50,000 रुपीज पर वेयर हाउस, वो हम आपसे मांगते हैं और आपको रजिस्ट्रेशन प्रदान कर देते हैं। इस पूरे प्रोसेस में अगर सब चीजें ठीक चलती हैं तो 10 से 15 दिन ही लगते हैं। प्रॉब्लम वहां आती है जहां पर थोड़ा सा आपके जो जैसे आप प्रोसेस करने लगते हैं डॉक्यूमेंटेशन में कोई इशू होगा, या बहुत सारे केसेस में पैक्स में सबसे ज्यादा इशू जो हमारे को फिलहाल आता है वो आता है जो इंडेमनिटी बॉन्ड या सिक्योरिटी डिपॉजिट रिलीज नहीं हो पाता है, तो उसकी वजह से रजिस्ट्रेशन जो है वहां आकर के रुक जाता है। नहीं, इसमें ठाकुर साहब मैं यूं पूछ रहा था कि जो सर। हायरिंग एजेंसीज हैं, अगर हम सर। उनसे रिक्वेस्ट करें कि वो इनिशियल इंडेमनिटी बॉन्ड का जो बैंक गारंटी दे दें और उसको बाद में पैक्स के रेंटल से काट लें, तो वो आपको चलेगा क्या? इज इट हाँ एक्सेप्टेबल? सर, यस सर, आई थिंक इट शुड बी, आई विल टेक इट ऑन नोटिंग, कोई इशू नहीं होगा, इट वुड बी एक्सेप्टेबल, इट शुड बी एक्सेप्टेबल। ठीक है, ठीक है, विल वर्क ऑन दैट, विल यस वर्क ऑन सर। दैट। वो उनके Yes. रेंट से निकाल लेंगे ना उतना पैसा। हाँ सर, ये हो जाना चाहिए। ऐसे हाँ, 2-3 आप इनोवेटिव चीजें देख लीजिए, आगे ठीक है चलिए। सर, ठीक है सर। नेक्स्ट। ये जो रजिस्ट्रेशन एक्चुअली बहुत सारे लोगों का पैक्स में तो थिंग्स आर वेरी डिफरेंट, बट अदरवाइज हमारे क्या फायदे होते हैं, बिकॉज एज फार एज WLGSP इज कंसर्न हम ENWR से डील नहीं करेंगे उसमें, तो इसीलिए हमारे लिए ये वाली स्लाइड बहुत ज्यादा रेलिवेंट नहीं है। नेक्स्ट नेक्स्ट।
अब ये जो इसमें पैक्स, ठाकुर साहब इस पे अपन ये स्टॉप करेंगे। इसमें मेन Yes, sir. पॉइंट ये है कि आपको सारे पैक्स को या जो भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं उनको WDRA से रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। yes, sir. तभी वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशंस उनको इन एजेंसीज के बिहाफ पे हायर करके उनको देंगे। एक Yes, चीज। sir. दूसरी चीज ये है कि पूरा का पूरा साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ द गोडाउन वो कोऑपरेटिव सोसाइटी को ही करना है। उसके लिए हमें स्टाफ होना है, ट्रेनिंग होना है। तो वो ट्रेनिंग्स हम ऑर्गेनाइज कराएंगे WDRA के माध्यम से और वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन के माध्यम से। ये बात हाँ, आप सर। समझ लीजिए, Yes, sir. क्योंकि Training हाँ एक मिनट, आई जस्ट कंप्लीट फिर। ये सारा जो स्टॉक है ये नेशनल वेल्थ है, ये सरकार का स्टॉक है। FCI का जो स्टॉक है या NCCF का स्टॉक है या जो नफेड से किया जा रहा है, जो किसानों से लिया जा रहा है, वो इट्स ए गवर्नमेंट स्टॉक। उसके ऊपर नेगोशिएबल ये लोन नहीं लेते हैं, लेकिन भंडारण का साइंटिफिक मैनेजमेंट हो, इसीलिए हम वेयर हाउसिंग रिसीट का सिस्टम, इंस्पेक्शन का सिस्टम जरूर रखेंगे ताकि हमारी एजेंसीज के बिहाफ पर साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ स्टॉक एंड स्टोरेज हो। इसको आप प्लीज समझ लीजिए। बाकी सब फैसिलिटीज दी जा सकती हैं, लेकिन क्वालिटी ऑफ वेयर हाउसिंग में किसी भी तरह की कॉम्प्रोमाइज संभव नहीं है। इसीलिए हमें पैक्स और अपने सहकारिता के क्षेत्र के ऑफिसर्स को या जो भी गोदाम मैनेज करेंगे उनको ट्रेन करना बहुत आवश्यक है। और कुछ ठाकुर साहब? विल क्लोज, गो टू द स्टेट्स, वी आर स्लाइटली Yes, शॉर्ट ऑन टाइम एक्चुअली। सर वेरी राइट सर, हम जो है कंप्लीट ट्रेनिंग कराएंगे, जितनी भी टीम्स हैं वी हैव ऑलरेडी वर्कड आउट द प्लान फॉर इट। ट्रेनिंग कराएंगे और साथ में उनका इंस्पेक्शन, पीरियोडिक साइंटिफिक इंस्पेक्शन होगा, दैट विल इंश्योर दैट बेसिकली दैट इज ऑफ द हाईएस्ट स्टैंडर्ड। ये बाकी लोग बाकी जो भी वेयर हाउसेज जो इससे डील करेंगे, देयर वुड बी नो रिलैक्सेशन एज फार एज साइंटिफिक स्टोरेज इज कंसर्न। Thank you so much. We'll start the states Pleasure. presentation. We'll start with Chhattisgarh, followed by Odisha, then Jharkhand and Bihar. Thank And you, we sir. hope the West Bengal will now pick it up. So already FCI अब बैठे। और अगर नेफेड, NCCF या FCI से कोई भी आपको क्वेरी है तो हमारे सब वरिष्ठ अधिकारी यहाँ हैं, आप उनसे भी पूछ सकते हैं। पीपीटी लगाइए। ये इसको रिव्यू तो करना पड़ेगा। DRCS लेवल पे डिस्ट्रिक्ट का रिव्यू और RCS ऑफिस लेवल में करेंगे। रिव्यू नहीं करेंगे तो ये अपने आप से गोदाम नहीं बनेगा। ये मैं सभी से अनुरोध करना चाहता हूँ। पीपीटी लगा दीजिए। आप इसको बस DCCB को बोल दिया तुम देख लो, या DRCS को बोल देना भाई देख लेना, उसने पैक्स के सचिव को कह दिया, ऐसे में नहीं बनेगा। शुरू करिए सर, आप सभी को नमस्कार सर। छत्तीसगढ़ में सर भारतीय खाद्य निगम के द्वारा 3 लाख मीट्रिक टन का एक वो दिया गया था, जिसमें उसके अब सारे अंतर्गत स्टेटस बता दो। नेफेड ने कुछ कहा, जी NCCF सर, ने मैं कहा, क्रम और से बता FCI, रहा हाँ, हूँ। जी चलिए। सर, अभी तक सर छत्तीसगढ़ से हमको 3 लाख मीट्रिक टन का रिक्वायरमेंट बताया गया था, जिसमें 144 पैक्स उसके भीतर आने थे। हमने अभी तक सर उसमें FCI के रिक्वायरमेंट जो फर्स्ट फेज में 1.5 लाख मीट्रिक टन भारत सरकार ने हमको कहा था अपनाना है, उसके लिए सर हमने अभी तक 27 पैक्स का चयन किया है। उस 27 पैक्स में से सर 17 पैक्स के लिए लोन सैंक्शन भी हो गया है। सभी को हायरिंग 27 पैक्स। आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है? आपकी एजेंसी कौन है? DPR पीछे जाइए। जी, SWC ने बनाया सर स्टेक। पहले 17 बताइए, ये क्यों नहीं कंस्ट्रक्शन में जा रहा? सर 17 पैक्स में सर अभी सबको लोन सैंक्शन हमने कर दिया इनको, और इसमें सर अभी जो भूमि का सर अभी तक आवंटन नहीं हो पाया, इस कारण से इसमें आगे नहीं बढ़ पा रहे। भूमि की बहुत भूमि आवंटन में परेशानी हो रही सर छत्तीसगढ़ में। तो हमने सर इसीलिए SWC से भी कहा है कि उनके पास जो भूमि उपलब्ध है वो अगर हम चर्चा चल रही भी वो अगर उपलब्ध करा देते हैं सर, तो हम सारे पैक्स एक एरिया के जो जिस प्लेस पे चाहिए इनको FCI को, वहां पे एक ही जगह में हम 5-6 पैक्स के लिए बनाने के लिए प्लान कर रहे हैं सर। अभी MD सर बैठे हुए हैं SWC के। यहाँ बात नहीं करना, ये तो आपको पहले बात करना है ना। जी नहीं, चर्चा चल रही सर इसमें स्टेट गवर्नमेंट लेवल पे। कब से सैंक्शन हो गए सर भूमि आवंटन सैंक्शन का क्या फायदा हुआ? सर 9 पैक्स में हम आगे बढ़ गए हैं सर बहुत ज्यादा। ये हमारा ग्राउंडिंग हो रहा है सर 15 जून को।
नहीं तो इसमें जमीन कहाँ तक क्लियर हुई वो बताओ, ये 17 में। सर उसमें अभी सर 5 पैक्स एक्चुअली अंबिकापुर के हैं सर, अंबिकापुर संभाग में, वहां पे हमको जमीन नहीं मिल पा रहा है। कितने में जमीन क्लियर है वो बताओ। सर 9 जगह है, वहां हमने क्लियर कर लिया है। वहां तो फिर आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है? सर आगे आएगा सर, वो इसमें एक्चुअली फॉर्मेट जो आया था सर उसमें वो भारत सरकार से आगे मिला था। चलो। नहीं वो 9 में कब पहुंचोगे वो बताओ। लास्ट पेज आया सर, आगे चलो। अंतिम पेज लाइए इसके बाद। सर ये उसका टाइमलाइन हमने दिया था 9 पैक्स का, जो हमको EMI सब्सिडी भी मिल गया है सर, इसमें 21 लाख सभी पैक्स का प्रथम किस्त मिल गया है। इसमें सर सबके लिए SWC से टेंडर भी 6/5/26 को जारी हो गया है। और इसमें सर हम पूरा हमने प्लान कर लिया है सर, ये 27 फरवरी को हम इसको कंप्लीट कर पाएंगे 9 पैक्स में गोडाउन निर्माण। इसमें सर हम 16 जून को सर माननीय मुख्यमंत्री से भूमि पूजन भी कराएंगे, इसका कार्यक्रम पूरा बन गया है। तो ये 9 पैक्स का सर हमारा 27 फरवरी तक कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें AMI सब्सिडी हमको मिल चुकी है। ये क्वांटिटी कितनी, कैपेसिटी कितनी है? ये सभी सर 2500 मीट्रिक टन के हैं सारे। अच्छा जी। तो मतलब कुछ नहीं, 25,000 भी नहीं। 62,000 सर, ये 42,500 मीट्रिक टन लगभग हो गई। इसमें सर और चयन कर रहे हैं सर, भूमि का ही अभी प्रॉब्लम है, तो एक समाधान सर राज्य सरकार ने यही सोचा है कि SWC के पास भूमि उपलब्ध है सर, SWC की भूमि लीज से लेकर के या पैक्स के नाम से आवंटन करा करके सारे एक जिले का जो डिमांड है FCI का। तो जैसे डेयरी कोऑपरेटिव है जी या और कोई कोऑपरेटिव के पास जमीन है उस एरिया में, तो आप लीज पे भी ले सकते हैं। सर उपलब्धता नहीं है सर डेयरी और फिशरी के पास भूमि की। टेक इट अप। सर वर्तमान जो भूमि उपलब्ध है सर छोटे गोडाउन के लिए, तो सर हमारे पास अभी 2,68,000 मीट्रिक टन का 200 मीट्रिक टन का गोडाउन बन रहा है सर, छोटी, क्योंकि जमीन की उपलब्धता सीमित है, तो वहीं उनका कार्यालय है, और 200 मीट्रिक टन गोदाम 2,68,000 मीट्रिक टन अभी बन रहा है सर छत्तीसगढ़ में। तो आपकी जो मार्केटिंग सोसाइटीज हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल की, उनके पास भी जमीन नहीं है? सर मार्केटिंग सोसाइटी सर उनके राइस मिल्स बने हुए हैं, चूंकि हमारा स्टेट पेडी प्रोक्योरमेंट वाला स्टेट रहा है, तो सर उसमें ऑलरेडी उनका मिल्स बने हुए हैं सर, और वो जर्जर स्थिति में है, तो सर वहां पे उनको हटा करके करने की बात होगी, इस कारण से उसमें अभी प्लान नहीं हुआ है। ठीक है जी। तो सर इस FCI का जो आया था सर, उसमें हमने ये किया हुआ, इसके अलावा सर नेफेड NCCF को हमने भेजा था सर 4 पैक्स के लिए धमतरी के, सहमति मांगा था 3-4 महीने पहले, अभी आज बता रहे हैं। 2 चीज है जी किस्मत का दरवाजा बार बार नहीं खुलता सर। और जब दरवाजा खुलता है तो वेट नहीं करता। जी सर। और 2 तरह की चीजें हो सकती है, या तो हम विश्लेषण करते रहें कि क्यों कार्य नहीं हो सकता सर, या प्रयास करें कि कार्य कैसा हो। करेंगे सर। तो आप दूसरा वाला चुनो। जी सर। सर NCCF का 500 मीट्रिक टन हम बनाएंगे सर, हमने सहमति मांगी थी NCCF से, अब तक सहमति नहीं मिला था कि यहाँ बनाना चाह रहे हैं कि नहीं, आज जैसा बता रहे हैं। पहले हमने रिक्वेस्ट भेजा था सर, कलेक्टर साहब ने कहा रिक्वेस्ट दे भी देगी तो आप बोलोगे भूमि नहीं है। सर 500 मीट्रिक टन के लिए हो जाएगा सर, और सर FCI के लिए सर उसके लोकेशन में चाहिए हो जाएगा। सर, FCI के लिए सर उसके लोकेशन में चाहिए सर, इनका जो है सर कलेक्टर साहब ने जमीन दे दिया है, तो यहाँ हम आसानी से कर पाएंगे NCCF के तो लिए। आप आगे बढ़ जाओ मैडम, आप दे दीजिए। हमारा लोकल ऑफिस इनके कांटेक्ट में है, और डेफिनेटली नहीं नेक्स्ट वो वीक तो में आपको आप DC में रखो। जी सर करा लेंगे। DC में रख के पास करो। सर इनका प्रस्ताव कलेक्टर सर से ही आए हुए, तो यहाँ बड़ा आसान हो जाएगा सर हमको NCCF ले करने में। आगे बढ़ रहे हैं उसमें। इसमें कलेक्टर से नहीं आएगा प्रस्ताव, कहीं कहीं से प्रस्ताव नहीं आएगा, सिर्फ हायरिंग एजेंसी RCS को बताएगी और आपका DRCS उसको DC में रखेगा। जी सर, यहाँ हो जाएगा सर धमतरी में। उसको आप आगे बढ़ाओ तो सर। उसको कब तक करोगे, और एजेंसी कौन रहेगी वो? सर DC एजेंसी तो सर SWC रहेगी। SWC को ही दे देते सर। हाँ तो आप वो ले लो, 9 वो हो जाएंगे, ये 4-5 जो हो गए, और ये नेफेड ने जो कहे वो। नेफेड ने सर अभी तक हमको रिक्वायरमेंट दिया नहीं है, अभी जो उन्होंने 44,000 अभी बताया सर, ये अब इनसे हम चर्चा करते हैं सर, क्योंकि हमारे पास अभी तक डाटा नहीं था, ये कल ही बात हुई थी इनसे, तो इनके पास रिक्वायरमेंट नहीं थी, कल शाम तक मैंने पूछा था। आप यहीं रायपुर रहते हैं? जी। और आप? जी रायपुर। तो मतलब आप हम लोग के आने का इंतजार कर रहे थे? सर परसों साथ में बैठे थे सर, इन्होंने कल कैलकुलेट किया होगा, जो इस साल खरीदी हो रही सर, इसके पहले खरीदी नहीं हो रही थी यहाँ पे रवि में, पहली बार खरीदी हुई है, तो इसको करेंगे सर। ठीक सर। इनके भी कराइए, इनके छोटे गोदाम है ना, 2000 नहीं है, तो भूमि की समस्या नहीं आना चाहिए सर, करेंगे सर। और FCI से रिक्वेस्ट है कि इन सच प्लेसेस कैन वी हैव 5 godowns of 500 or 2 godowns of 1000 depending on land,
अवेलेबिलिटी वो एक थोड़ा सा अपन अलग बात करेंगे, आप नोट करें। Definitely, we will look into it हाँ, in a very positive manner. sir. हाँ, नहीं तो फिर ये जहाँ हमें चाहिए वहां नहीं बना के देंगे। सर सबसे बड़ी समस्या भूमि उपलब्धता की है सर, वो हो जाए तो हम एफसीआई पैक्स का भी बना पाएंगे एफसीआई के लिए। लोग गुड़गांव में बना रहे हैं गोडाउन, सर हम कर रहे हैं 27 इसलिए चयन किए नहीं, सर, बड़े आगे बड़े बढ़ रहे बन हैं रहे हैं। आओ सर। दिखाता हूँ। सर गुड़गांव में जमीन मिल जा रही, पता नहीं यहाँ नहीं मिल रही, क्या है, एक बार देख लीजिए। जी सर, थैंक यू सर। हाँ, थैंक यू सो मच। ओडिशा, आपको कोई इश्यू है नाबार्ड से सैंक्शन का? आप एक इनकी वर्कशॉप कर लीजिए और क्लोज करिए। चलिए, हाँ, We have received a proposal of 525 packs godown, consisting of 200 metric ton under RIDF. Since normative allocation अभी तक हमारा आया नहीं है, वो दैट इज आउटसाइड, दैट इज आउटसाइड WGSP। इनसे कनेक्ट कर सकते हैं। वो आए तो आपके पास दैट वी आर ओके। आप स्टेट गवर्नमेंट से टाई अप करके अगर वो आ जाता है तो वी हैव नो इशू। हाँ जी, ओडिशा बहुत समय से टेंडर चल रहा है, टेंडर फाइनलाइज ही नहीं हो रहा है। सर कैंसिल तो नहीं हो जाएगा? sir, our register is online. He will make presentation. अग्रवाल जी, जी सर। सर वेरी गुड आफ्टरनून सर। सर इसमें यह है कि सर जिन 11 पैक्स के लिए सर सब्सिडी वगैरह डिस्बर्स हो गई थी सर बाय मंथ एंड, सर 31 मई के अंदर में सर ओसाम बोर्ड उसका काम स्टार्ट कर रहा है सर। तो सर इमीडिएटली 16,000 टन के लिए है सर, इमीडिएटली काम स्टार्ट हो जाएगा सर। बाकी जो है सर 15,500 के लिए उसका भी सर इन प्रोसेस में है सर। RIDF के टाइमलाइन क्या है और एजेंसी कौन है? DPR बन गई, टेंडर फ्लोट हो गया? सर ओसाम बोर्ड को सर सेंट्रल एजेंसी के हिसाब से सर हम लोगों ने लिया हुआ है, जो कि सर जहां कहीं भी DPR बनानी है और प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करना है सर, सेंट्रली सब कुछ मॉनिटर हो सके और लोकल इंटरवेंशन थोड़े कम हो, इसके लिए सर ओसाम बोर्ड हम लोगों का ये सारा कंस्ट्रक्शन करेगा सर। सर इसमें सर 16,000 का कंस्ट्रक्शन तो सर इस मंथ के एंड तक स्टार्ट हो जाएगा सर। और सर बाकी 15,500 जो रहेगा सर उसका भी सर विद इन 2 मंथ्स के अंदर में सर हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि स्टार्ट हो जाए सर। मेन एक और चीज भी है कि सर स्टेट गवर्नमेंट ने सर RIDF के अंदर में मॉडल मंडी स्कीम और RIDF के अंदर में सर डोटेल किया है, जिसके अंदर में कि 80 गोडाउन सर 200 मेट्रिक टन के सर तैयार हो रहे हैं। इसी तरीके से सर 38 गोडाउन सर 32,000 टन के लिए जो है सर ये स्टार्ट होंगे सर, जो कि जिन पे काम चल रहा है और सर 1 साल के अंदर में कंप्लीट हो जाएंगे सर। सर इसके बाद में सर जो 50 लाख एमटी करना है सर, उसके अंदर में उड़ीसा में सर 4 लाख मेट्रिक टन का टारगेट है सर। सर इसमें से 3.5 लाख मेट्रिक टन सर 4 जिलों के अंदर में है सर, संबलपुर, बरगढ़, कालाहांडी और सोनपुर। सर इसके अंदर में सर हम लोग क्लस्टर अप्रोच के अंदर में जा रहे हैं, जिसके अंदर की सर बरगढ़ में और कालाहांडी में सर 2 पैच आइडेंटिफाई कर लिए, जिसमें कि सर करीब 70,000 मेट्रिक टन बरगढ़ में और सर कालाहांडी में सर 37 करीब 40,000 मेट्रिक टन के लिए सर लैंड आइडेंटिफाई हो चुका है सर। एडवांस पोजेशन के लिए फाइल मूव कर रहा है सो दैट आगे की कार्रवाई उसमें स्टार्ट हम लोग इमीडिएटली कर पाए सर। संबलपुर में 50,000 मेट्रिक टन के लिए सर सिमिलरली 3 जगहों पे लैंड आइडेंटिफाई हो चुका है सर। सर सोनपुर में जो 75,000 का हम लोगों ने टारगेट रखा उसमें 45,000 के लिए लैंड आइडेंटिफाइड है सर, और काम आगे इसमें बढ़ रहा है सर थोड़ा। सर बाकी भी जो लैंड है सर इन 4 डिस्ट्रिक्ट में हम लोग क्लस्टर अप्रोच पे बढ़ रहे हैं सो दैट कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होकर के जो एंसिलरी फैसिलिटीज और इंफ्रास्ट्रक्चर बोला गया सर उसके लिए इमीडिएटली मतलब एक कॉस्ट भी कम आए और सर मैनेजमेंट इजी हो सर। जो भी वेयर हाउसिंग एजेंसी इनको मेंटेन करेंगे ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हायरिंग बाय FCI सर, उसमें टोटल रनिंग कॉस्ट भी इन सब चीजों की कम आए सर, उसके लिए हम लोग ये आइडेंटिफाई कर रहे हैं सर। इसमें भी मतलब शॉर्टली सर आई विल अश्योर यू कि इन 4 जिलों में इमीडिएटली काम सर स्टार्ट होगा सर। 2 जिलों में बरगढ़ और कालाहांडी में तो सर विद इन 3 मंथ्स आई एम होपफुल दैट लगभग 1 लाख मेट्रिक टन का हम लोग कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट कर पाएंगे सर। साथ में सर उड़ीसा स्टेट वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन जो है सर ये भी करीब 84,000 मेट्रिक टन का काम सर स्टार्ट कर रहा है 15 जिलों में सर। दिस इज ओवर एंड अबव जो कि 4 लाख मेट्रिक टन का टारगेट FCI के हायरिंग पे है
सर एक सबमिशन इसमें ये था सर कि पैक्स के पास में सर लैंड अवेलेबिलिटी कम है और हमारे जो रेगुलेटेड मार्केट के कमिटीज जो हैं सर आरएमसीज वो भी इसमें कंस्ट्रक्शन वर्क लेना चाहते हैं, बट सर उनका खुद का इंटरेस्ट है कि हम लोग इसमें करें बिकॉज दिस इज प्रॉफिटेबल काइंड ऑफ अ प्रोजेक्ट। तो सर लैंड लीज पे देने की बजाय वो चाहते हैं कि वो लोग खुद करें। सर दीज आर एजेंसीज ऑफ द कोऑपरेशन डिपार्टमेंट ओनली। सर इसमें जो सब्सिडी का जो गैप है सर कि सर पैक्स और लैम्प्स के लिए तो करीब 33% सब्सिडी है एंड अदर कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस के लिए 25% सब्सिडी है। सर मेरा सबमिशन रहेगा कि अगर इस चीज को इक्वल कर सकें तो जो भी सर डायरेक्टली एजेंसीज इन्वॉल्व हैं सर इट विल फर्दर बी प्रॉफिटेबल फॉर देम। सर इसके बाद में सर फोर्थ साइड को नेक्स्ट कौन सर गोडाउन्स जो है सर हम लोग क्लस्टर मोड पे ले रहे हैं सर ये है सर टेंडर्स और ये सारी चीज का नेक्स्ट सर एफसीआई की तरफ से सर हम लोगों को करीब 3 लाख मीट्रिक टन के आसपास का सर हायरिंग एश्योरेंस भी मिल चुका है। 6 स्लाइड पर नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सर टू प्रमोट दिस वेयर हाउसिंग सर सारा गोडाउन कंस्ट्रक्शन के लिए सर सबमिशन ये है कि 33% जो सब्सिडी मिल रही है एएमआई फंड में। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सर 3% इंटरेस्ट मिल रहा है सर अग्रवाल जी that, नहीं सुनिए, अगले 2 महीने में आपके कितने ग्राउंड हो रहे हैं वो देख करके फिर बाकी की बातों पे चर्चा करते हैं। जी सर। क्योंकि आपने जो स्टेटस अभी बताया वो हम जब एससीडीसी के लिए माननीय सचिव महोदय आए थे उससे कोई बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं है। स्टेटस जो करीब कुछ महीनों पहले था वो वही है, पर चूंकि अब आपने कहा कि आने वाले 2 महीने में कुछ प्रोग्रेस दिखेगी तो बाकी के जो इश्यूज आप कह रहे हैं कि वही कंडीशंस अदर कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए की जाएं, तो आप उसमें लैंड अवेलेबिलिटी पहले बताएं, नंबर 1। नंबर 2, जिन लोकेशन पे हायरिंग एजेंसीज ने मांगी है वहां आपकी कौन सी सोसाइटी है और उसकी लैंड अवेलेबिलिटी क्या है, ये मैट्रिक्स एक निकाल लीजिए, उस पर आगे चर्चा जारी रहेगी और रिक्वेस्ट रहेगी कि हाँ सर कालाहांडी में जैसे सर फ्रेशली हम लोगों ने सर सीएसओ एफसीआई के ऑफिशियल्स और हमारे कोऑपरेशन डिपार्टमेंट से सर जाकर के आइडेंटिफाई किया करीब 40,000 मीट्रिक टन के लिए एक पैच ऑफ लैंड सर हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया है। सर वहीं पर ये वाली फैसिलिटी हम लोग पूरी क्रिएट करेंगे। रियल हेड से करीब 7-8 किलोमीटर की दूरी पे। तो सर मोस्ट सूटेबल लैंड है सर। कलेक्टर इसमें कंप्लीटली कोऑपरेट कर रहे हैं सर। एडवांस पोजेशन के लिए इमीडिएटली सर ये जा रहा है, तो सर इसमें हम लोग काम स्टार्ट कर पाएंगे। सेम थिंग सर बरगढ़ में है। बरगढ़ में सर जो 30 एकड़ पैच ऑफ लैंड है सर पैक्स उसके लिए आइडेंटिफाई हो चुके हैं सर। रियल हेड से करीब 12 किलोमीटर का डिस्टेंस है, जस्ट एनएच के ऊपर में है सर। सर एनएच से इसका मतलब हम लोग को एंट्री पॉइंट मिल जाएगा सर। ये सब एससीडीसी में सेम यही पूरा डिस्कस हो चुका है। तो अब हम we'll monitor and see how's your progress over the next 2 months. Yes, sir. Then we'll take a over next decision 2 on months, your sir. balance requests. जी सर। सर एक सबमिशन ये था सर कि सर मतलब स्टेट गवर्नमेंट भी 25% सब्सिडी तो इसमें दे रही है सर। मेरा सबमिशन ये है कि सर हम लोग 5,000 मीट्रिक टन वाले गोडाउन एक पैक्स बना रहा है सर। उसमें सर इंटरेस्ट सबवेंशन सर उसके लिए कैपिंग की हुई है कि 2 करोड़ का इंटरेस्ट सबवेंशन दिया जाएगा, जबकि सर 3% इंटरेस्ट सबवेंशन सर अगर कंप्लीट अमाउंट पे हम लोग को मिल पाए, क्योंकि सर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट करीब 5 से 6 करोड़ रुपए के बीच में जा रही है सर एक 5,000 मीट्रिक टन के गोडाउन के लिए। तो सर इसमें सब्सिडी का अमाउंट हटाने के बाद में सर अगर इंटरेस्ट सबवेंशन उसमें पूरे पे मिल पाए सर, अभी का जो नॉर्म्स है उसके हिसाब से करीब ये 2,000 से 2,500 मीट्रिक टन के बीच के गोडाउन के लिए सर सफिशिएंट हो रहा है। तो सर जैसे ही हम लोग बड़े गोडाउन की तरफ जा रहे हैं उसी तरीके से सर वी आर लूजिंग ऑन द इंटरेस्ट सबवेंशन सर। दूसरा ये था कि सर जो टोटल गोडाउन बना ले आप, सब्सिडी कैपिटल सर अग्रवाल जी सचिव महोदय मार्गदर्शन दे रहे हैं उसी कैंपस में। Then we'll see how best we can get you 2 godowns. उसमें एआई स्कीम में लिमिट है ना, कैपिंग है 2 करोड़ तक की, उसके ऊपर नहीं मिल सकता आपको बेनिफिट सबवेंशन। स्कीम हैज अ कैपिंग ऑफ 2 करोड़, उसमें ये इशू है। मैं तो आपको ये कहूंगा अग्रवाल जी, प्राइवेट गोदामों को ना तो ईएमआई है
ना AIF है, ना हायरिंग एश्योरेंस है, ना उनकी ना खुद ही की है, 1% पे लोन मिल रहा है। और उनको 9%, 10%, 11% पे लोन मिल रहा है। यहाँ पर नाबार्ड के स्पेशल रिफाइनेंस के बाद इफेक्टिव लेंडिंग 1% मिल रहा है। तो वो गोदाम तेज बन रहे हैं, ये गोदाम नहीं बन रहे हैं। तो शायद कहीं ना कहीं पूरे सेक्टर को इस पे रीथिंक करने की जरूरत है। सर मैं श्योर करता हूँ सर, विद इन नेक्स्ट हमेशा हमेशा सब्सिडी आएगी, ये आएगी, तब होगा। उस माइंडसेट से भी सहकारिता क्षेत्र को बाहर निकलने की आवश्यकता है। SCDC मीटिंग में कलेक्टर्स भी कनेक्ट हुए थे सारे जो आप बात कर रहे हैं। Yes, All sir. connected and they had given assurance of quickly providing the Land. acquisition of land. आप बताइए right to the chief secretary. Sir, I think we'll take it up, sir, again. ठीक है, thank you, Odisha. Thank you very much. We go on to the next state. West Bengal and Madhya Pradesh, anyway, there is nothing indicated. So Jharkhand and now Bihar. Please. देखिए, सेट बन जाता है। गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी पहल आए तो इसमें सब्सिडी क्या, ये क्या, वो क्या। सहकारिता का क्षेत्र अब इस स्तर पे आ गया है कि हम इस माइंडसेट से आगे निकल जाएं। हमारे अपने रिसोर्सेज बहुत हैं, माननीय मंत्री जी हमेशा ये कहते हैं। और आपको 9 साल का अश्योरेंस मिला हुआ है, किसी को नहीं मिलता है। जैसा सचिव महोदय ने कहा 1% पे इंटरेस्ट मिल रहा है, किसी को नहीं मिल रहा है। आपको 35% सब्सिडी मिल रही है, किसी को नहीं मिल रही है। इंटरेस्ट सबवेंशन मिल रहा है, किसी को नहीं मिल रहा है। तभी भी प्रेजेंटेशन में क्यों नहीं बन सकता, उस पे विश्लेषण ज्यादा है, कैसे बनाना है उस पे सोच कम दिख रही है। मैं फिर से अनुरोध करूंगा कि एक बार इसे फिर से हम देखें क्या हो सकता है। जी, सभी रेस्पेक्टेड ऑफिसर्स को जोहार। सर, झारखंड में टारगेट हम लोगों को मिला था 1.5 लाख एमटी का, और जिसमें हम लोगों ने 72 आइडेंटिफाई किया सर। इसमें 108 हमारे टोटल डीसी से अप्रूव होकर आए थे सभी जिलों से सर, और 72 में हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया लैंड, जिसमें जांच कराई हमने ऑफिसर्स की टीम बनाकर, जिसमें हमारे कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के ऑफिसर थे। नहीं तो FCI आपका तो आगे कुछ बढ़ा ही नहीं सर। 54 कोई कहाँ गए, दिखाइए कंस्ट्रक्शन में कहाँ सैंक्शन वगैरह कहाँ है। सर कंस्ट्रक्शन में भी गए नहीं है सर, ये विभाग में गया है। नहीं तो वही बात है ना, पिछले 6 माह से वो एक मॉडल DPR से आगे जा ही नहीं रहा। सर ये बजट अप्रूवल हुआ 25, 26, 27 बजट अप्रूवल का वो तो लोन सैंक्शन होना है ना सर। इसका इसमें बजट से क्या करना है सर में स्टेट गवर्नमेंट का इसमें 40% सब्सिडी दे रही है तो सर। वो तो बैक एंडेड रहेगी ना, उसका क्या लेना देना है। ये एक कूलर बंद कर दीजिए, कोई भी एक बंद कर दीजिए सर। ये प्रपोजल विभाग में चला गया नेक्स्ट कैबिनेट में सर। ये ऐसे नहीं सर ऐसे नहीं होता है सर। आप पहले सैंक्शन करिए। आपकी DPR बनाने वाली एजेंसी कौन है। सर DPR हमारी एक अपनी ICDP के उससे बन गई सारी DPR बन सर, गई। बन गया सर DPR बन गया। पैक्स के बोर्ड से रिजॉल्व होके DCCB के लिए राइट सर, चली गई। अप्रूवल है सर DCCB से। नहीं DCCB बैंक सर स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है सर हमारे। अच्छा, तो आपके यहाँ 2 टियर है सर। तो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक को चली गई सर बिल्कुल सर। सैंक्शन हो गई सर नहीं हुई ना। सर सैंक्शन ये कैबिनेट में जाने वाला है सर, नेक्स्ट कैबिनेट सैंक्शन नहीं करेगा भाई DPR, वो तो बैंक को करना है ना। 10% मार्जिन मनी फ्रॉम द कोऑपरेटिव सोसाइटी, बैलेंस इज द लोन फ्रॉम द बैंक। सारी सब्सिडी बैक एंडेड आती भाई साहब। आप समझे ना मैं क्या कह रहा हूँ। सर समझ रहा हूं। तो कहाँ अड़चन आ रही है। सर इसमें जैसे है कि जून में जाना है इसको सर, टेंडर प्रोसेस में जाएगा जी। जून में सर, जून मंथ में। उसके बाद जुलाई में इसका फाइनल हो गया सर, कंस्ट्रक्शन शुरू करें। पहले लोन तो सैंक्शन करो, AMI के लिए अप्लाई तो करो।
ठीक है सर। ensure NABARD, who's CGF? Ma'am, what's happening? माइक दीजिए प्लीज, आप बैठ के बात करिए मैम प्लीज। Good afternoon, sir. So we have participated in every meeting. Recently, we had that agency also with the development commissioner. So we have requested them to expedite. They have identified 54 land. So, what do you think is the problem? So the access, there is no problem. There is no problem. That's what. There is no problem in sanctioning the loan by the DCCB. आप क्यों रुके हुए हैं भाई साहब? They had made a much larger. नहीं ठीक है। Application. No, the whole outlay was much higher than NABARD told them that it is too high because the loan burden on the PACs would be too much. There was no need for a 7 crore. Not outlay. required. So finally, they have brought it down to 2.98. So though NAPCOMs had done for WDRA, it was for about 2.18 crore. But anyway, 2.98 is still fine because the state government is putting the 40% subsidy. So we are pursuing with them, sir. It's 2.84 now. It's हाँ और कोई कम आ बात गया। नहीं, कोई बात नहीं, 2.8 ठीक है। ठीक है, हम लोग साथ में ही हैं। आप तो उसको सैंक्शन तो करिए। ठीक है सर। सर थोड़ा सा डीलिंग और इसलिए हुआ था कि बीच में सर आरसीएस भी हमारे नहीं थे सर। आरसीएस सेक्रेटरी दोनों नहीं थे 1 मंथ के लिए सर। वो पूरे मार्च अप्रैल में लोन आरसीएस को सैंक्शन करना है, किसको? सर प्रोसेस जैसे ऑफिस में कोई आरसीएस है ही नहीं कहीं। लोन सैंक्शनिंग के प्रोसेस में आरसीएस का कोई रोल ही नहीं है मॉनिटरिंग के अलावा। क्या बात बता रहे हैं आप? हेड ऑफिस में तो कोई थे नहीं सर। हेड ऑफिस देना है ही नहीं। का रेजोल्यूशन होगा, डीपीआर होगी, वो डीसीसीबी में जाएगी। जैसे पैक्स के कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो डीसीसीबी से लोन लेता है ना, उसमें आरसीएस बीच में आता है ना इसमें बीच में आएगा। आप इसको जरा रिव्यू करिए सर। और मैडम आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, इनके यहाँ लैंड भी है सर, सब कुछ रेडी है। ये ग्राउंडिंग आप 3 महीने में ग्राउंडिंग में लेके आइए। टेंडर कौन बुलाएगा? सर टेंडर आईसीडीपी बुलाइए सर। आईसीडीपी कॉल करें। एजेंसी हो गई फाइनलाइज, कौन टेंडर बुलाएगा? सर डीपीआर आईसीडीपी ने ही बनाया, वही हम लोगों ने विभाग में भेजा। मतलब आपकी कोई संस्था है? सर पहले एक चलती थी कोऑपरेटिव डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, तो उसका इंजीनियरिंग सेल जो है वो हम लोगों ने हायर किया हुआ है। अच्छा सर, तो वो आपने डिसाइड कर लिया? सर So ma'am, I think we'll request NABARD's good officers to pursue here and ensure that immediately the DPRs are sanctioned and brought on to the Ensure portal for AMI subsidy. Yes. ओके सर। वो तो अब आप देंगे, उसमें आपने पहला डिसबर्समेंट किया, 50% ऑफ सब्सिडी आपको आ जाएगी। आपकी जब कैबिनेट से आएगी वो तो आएगी ही, ये भी पहले ले लीजिए। ठीक है सर। राइट सर। और मैं सबके लिए क्लैरिफाई कर दे रहा हूँ, 10% मार्जिन मनी रहना है। उसके अलावा कन्वर्जेंस ऑफ स्टेट सब्सिडी एंड सेंट्रल सब्सिडी दोनों परमिटेड हैं। एनसीडीसी से भी ले सकते हैं मार्जिन मनी इशू। And NCDC is also available to give for margin money assistance if you want. That also NCDC can give. तो अब इसमें आप प्लीज रुकिए मत, अब आगे बढ़िए। ठीक है सर? ठीक है सर। साइड राइट सर, डॉक्टर सर। हाँ, और बाकी में कितना देखना है? नेक्स्ट बात सर, बाकी जो रेस्ट जो 18 हाँ, छूट रहे हैं सर। हाँ, तो 36 हमारे हम लोग और बचा हुआ है पहले से। 108 हमने आइडेंटिफाई किया था, उसमें से उसको हम लोग वेरीफाई करवा रहे हैं सर। और वो 15 दिन में हो जाना चाहिए वो सर। थोड़ी समय सीमा लगा के वेरीफाई करें सर। बिल्कुल समय हो रहा है सर। लास्ट 49 था, 55 हो गया अभी सर। 31 मार्च के दिन जो प्रोग्रेस थी ना सर, और आज जो प्रोग्रेस है अक्षरशः सेम है सर। लैंड वेरिफिकेशन पे बढ़ा है सर। वो तो उससे गोदाम तो कोई नहीं बना। थोड़ा देखिए, इस पे ध्यान दीजिए। और कुछ आपको किसी से पूछना है? कोई एजेंसी? हमारा सर ये, हाँ बताइए, कितना कॉस्ट ऑफ गोडाउन इंक्लूडिंग जीएसटी सर? ठीक है सर, ये तो सब डिस्कस हो चुका, आगे चलिए सर। ये बस, थैंक यू सर। लास्ट प्रेजेंटेशन बिहार।
यहाँ भी अच्छी शुरुआत हुई थी, फिर पता नहीं बीच में थोड़ा सा धीमा हो गया। आइए। गुड आफ्टरनून सर। कोई जुड़े हैं आपके एडिशनल आरसीएस या प्रेजेंटेशन कौन मस्ट करे? बी सर, आरसीएस ऑफिस से कोई लोग ऑफिसर्स जुड़े हुए होंगे सर। वो कोई लोगों को बोलिए, सर आएंगे, प्रत्यक्ष होंगे। सर वो होंगे सर। और मैं सर बैंक बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक से डीजीएम सुरेंद्र नारायण नहीं नहीं, आप जुड़े हुए सर, आरसीएस Additional registrar, ऑफिस में कामेश्वर प्रसाद Additional वगैरह registrar कोई जुड़े नहीं हुए है? सर। सर जुड़े हुए हाँ सर। हाँ, बताइए। सर 36 गोडाउन्स का जो आइडेंटिफाइड था पहले से, इसमें से 25 में कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया है सर। बिहार स्टेट वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन के इंजीनियर जो है सर लेआउट करा के काम शुरू करवा रहे हैं सर। जितना जल्दी होगा कोशिश करेंगे हम लोग सर कि नवंबर तक कम से कम 15 तो जरूर 20 से हम लोग कंप्लीट करके इसमें। ठीक है। सर और ये जो इसमें 6 जो बच रहा है हमारा, हाँ बताइए। 6 में लैंड का इशू अभी तक रिजॉल्व नहीं हो पाया है सर। हाईएस्ट लेवल तक फ्लैग्ड है सर। डीएम्स को सेक्रेटरी सर के स्तर से 2-2 चिट्ठियां हम लोगों ने दे रखा है। इसके अलावा भी बात चल रही है सर। तो 6 जमीन का थोड़ा सा इशू अभी रिजॉल्व नहीं हो पाया है। आपको एक मिनट, आपको भी और छत्तीसगढ़ को भी एक सुझाव है। कम जमीन लगती है, साइलो जो स्टील का स्ट्रक्चर बनता है वो हॉरिजॉन्टल उतना ना बन के वर्टिकल बनता है। तो अगर आपको, और उसकी कीमत भी जो है वैसी ही बैठती है, उससे कम बैठती है। तो जहां जहां आप जमीन की समस्या से जूझ रहे हैं वहां आप हॉरिजॉन्टल फैलाव की बजाय आप वर्टिकल साइलो स्ट्रक्चर को एग्जामिन करो। सर इसमें मैं जो एक बात मैं कह रहा हूँ कि इतनी सारी इश्यूज आ रहे हैं। लाइक सर 2500 MT का एक गोदाम था, उसको रिसाइज करवाना पड़ा हमें 2000 में। 4 मीटर की सड़क है। एफसीआई और वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन कह रहे हैं कि 4 मीटर की सड़क हम नहीं लेंगे। फिर 2500 MT बनाने के लिए तो बोल रहा है कि जब एफसीआई किराया पर नहीं लेगा तो फिर हम क्यों इसमें आगे बढ़े। आप अपनी सुनिए, आपके सेक्रेटरी, आपके आरसीएस, आप आ जाओ दिल्ली, आपकी सारी समस्या और सारे एजेंसीज के एमडी से बुला के हम आधे घंटे में रिजॉल्व करा देंगे। थोड़ी सर मतलब नहीं, वो हम सुनिए, सॉर्ट आउट कर लिए सर। नहीं, आप किस दिन आना चाहते हैं बताइए। आप किस दिन आना चाहेंगे बताइए। कौन आपकी सड़क बोल रहा है, क्या कह रहा है, समझ लेते हैं। आप आ जाओ। सर आप हमारे मीटिंग रखने का इंतजार मत करो, आप आ जाया करो। नहीं सर, अकेले solve हम लोग कर समस्याओं लेंगे से सर, मत नहीं रहता जूझो। तो सर को बताते। हाँ, नहीं, यहाँ फास्ट मूव करने की जरूरत है। सर साइलो वाला इनिशियली सर एग्जामिन कर लेते हैं। आप एग्जामिन करिए साइलोज, बहुत छत्तीसगढ़। आप भी साइलो एग्जामिन करिए जहां आपको जमीन की समस्या की बात आप कर रहे हैं, और इसमें इसको सर 25 से तो एक्सपेडाइट करिए। कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया सर। ठीक है। और सर 2 और 31 मार्च के बाद AIF में लगाया था, एक का तो स्वीकृति मिला है, एक अभी भी पेंडिंग है सर। नाबार्ड ये क्यों एक AMI के लिए पेंडिंग है, देख लीजिए। बिहार से कौन है? AIF वाला है सर। सर गौतम सिंह CGM, हम ऑनलाइन जुड़े हुए हैं। मेरे DGM है वहां पे, कल ही आया है। एक हमने अप्रूव किया, दूसरा हम लोग अभी कर रहे हैं सर। ऑलरेडी अप्रूव्ड सर, दोनों ऑलरेडी अप्रूव्ड सर। ओके सर भोला DGM बोल रहे थे, हम लोग अप्रूव कर दिया AIF पे दोनों प्रपोजल। देखिए कामेश्वर जी, आपके बोलने भर की देरी है, सब लोग एग्री कर रहे हैं। सर बैंक से इसमें सर ऐड करना चाहेंगे एक ये नव संरक्षण से जो क्रेडिट गारंटी था उसको हम लोगों ने अब तक पहले एक्सप्लोर नहीं किया था। तो अभी आज के मैम के प्रेजेंटेशन के बाद हम लोग नव संरक्षण से क्रेडिट गारंटी। तो बिहार CGM साहब, इन्होंने क्यों नहीं एक्सप्लोर किया अभी तक नव संरक्षण, आप कुछ बताना चाहेंगे? ये जिम्मेवारी तो फिर नाबार्ड की थी ना। जी सर गुड आफ्टरनून सर, मैं DGM बोल रहा था, भोला प्रसाद फ्रॉम बिहार रीजनल ऑफिसर।
आप इनको नव संरक्षण की क्रेडिट गारंटी जल्दी एनरोल कराइए। सर ऑलरेडी कल ही परसों मीटिंग में डिस्कस हुई है बीएसटीसीबी के टीम से, और इनको नहीं, हम पर लोगों ने कहा है ये तो 6 महीने से चल रहा है, इसके लिए परसों क्यों मीटिंग हुई? या बीएसटीसीबी से हम लोग पहले भी कह चुके हैं, ये जल्दी हो जाएगा सर, ये कर लेंगे हम लोग। ठीक है, ठीक है। आपके स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के एमडी को बोलिए ये जिन जिन जिलों में गोदाम है वहां डीसीसी भी तुरंत ऑनबोर्ड हो इस पर। सर ऑलरेडी एप्लीकेशन सबमिटेड सर, सब कुछ। थैंक यू। सो वी हैव कम टू एन एंड ऑफ दिस सेशन सर। सर प्लीज एक इशू सर। आप आ रहे हो ना दिल्ली, वहीं बात करेंगे, आ जाओ। सर एक छोटा सा है बस। बोलो। एक टेक्निकल सर इशू है, चिट्ठी लिखे हैं, सारंगी साहब से बात भी हुई है। वो सर हम लोग प्रयास कर रहे हैं, एआईएफ में एक हमारे यहाँ समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट का सर इशू है कि उस पर जब अप्लाई करता है तो वो सर डीसीसीबी समस्तीपुर को नहीं डायरेक्ट होकर के वो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक को हो जा रहा है। तो सर ऐप में कुछ इशू है, उसको थोड़ा कोऑर्डिनेट हम लोग से सर नहीं हो पा रहा है। सुनील जी से भी बात किया, कई जगह बात किया। आप मुझे अभी व्हाट्सएप करिए, मैं एआईएफ की जो पीएमयू है उनसे अभी बात करके इसको रेक्टिफाई कराता हूँ। थैंक यू सर। Thank you, Bihar. So we have come to the end of this session. We overshot time by about 40 minutes. But my final request, and sir, I'll request Secretary sir to give the comments, sir. I mean, we need more energy into this, sir. After March, not much progress is being seen, sir. So. See, we have had discussions with some of the states at the highest level, but progress उस तरह निकल के नहीं आ रही है. And we are under commitment at the highest level to show a certain level of development. I am not sure whether we will deliver on that. With the speed which we are seeing in these states, my request is, आपने side satisfy कर लिए हैं, bottlenecks हमको बताइए, argue with these states or engage with them on a weekly basis. अब बताइए क्या इशू है, सेट जैसे बताइए है या कहीं पर सैंक्शन का इशू है, सैंक्शन में ऑनबोर्डिंग का इशू है, या इनका बैंक से नाबार्ड के थ्रू एंगेज करके लोन सैंक्शन कराना है, जो भी जहां पर भी मोटिव आइडेंटिफाई करें लोकेशन। My request to all states now, let us not talk about numbers. Let's talk about locations and the specific issue related to the location. तो बताइए जिससे कि कम से कम 20-50 निकल के सामने आए, बना रहे अच्छी बात है, और स्टेट भी अपना सब्सिडी देनी है जल्दी इस पे कर रहा है। Please, they have to capital too fast, because if they are waiting, if there is a inertia, because things are not happening in lieu of they are waiting for this subsidy, let it happen. थोड़ा सा state level पे nudge and say we'll try to engage with chief secretary as well to ensure that things happen faster and whatever. थोड़ा स्पीड तेज करनी होगी, नाबार्ड सीजन को भी एंगेज करिए, दे शुड रेगुलरली रिव्यू विद द स्टेट एवरी वीक। हम उनके साथ भी रिव्यू करेंगे, सीजीएम विल आल्सो बी ऑन बोर्ड से कि कोई इशू हमको फ्लैग करें। दे आर आईज एंड ईयर्स ऑफ नाबार्ड इज इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी। बताइए कहां पर इशू है, सॉर्ट दैट। कहीं पर भी आपको लगता है गैप है अंडरस्टैंडिंग में, मूवमेंट में और सैंक्शंस में, लेट्स will be the amount of effort which has been given by the ministry with FCI is amazing. आपको पता होगा कि मेहनत हमने की है FCI को ऑनबोर्ड करने में। In fact, Secretary Food was talking to me yesterday, और कोई इशू बाकी तो नहीं बताया we have addressed all the issues which were there with FCI. Other agencies and other issues are much smaller, much, I would say, minor than what we were addressing with the FCI. अगर एफसीआई के इश्यू सब सेटल हो सकते तो बाकी भी हो सकते हैं समय में। माय रिक्वेस्ट विल बी 15 जून के अंदर सारे इश्यू सकते हैं, एंड वी मूव फॉरवर्ड इन अ मोर कंसर्टेड एंड ऑर्गेनाइज्ड। Thank you very much, sir. Thank you all the agencies. We'll break for lunch and we'll meet at 2:25 for the next session. Thank you, sir.
इलाज ये चल रही है